Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Students, today the topic of our discussion is Constitution. In this topic we will discuss about its definition, sources of Constitution, kinds, amendments, its characteristics and its classification. So we are starting our new topic of discussion, which name is Constitution. In this topic, firstly we have to discuss its introduction. When we start its introduction, every state must have a constitution. It is very easy and understandable thing that कि हर स्टेट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है. Without a constitution, it is difficult to govern a state. Student, history tells that since the origin of the state, there had been some kind of rules and regulation in some form to maintain the order and harmony of the state. So basically students, हर स्टेट की हिस्ट्री हमें बताती है कि स्टेट की ओरिजिन के अंदर किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉर्मुलेशन होना बहुत ज़रूरी है. किस लिए? स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, स्टेट की हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए और उसको स्टेबल रखने के लिए. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इन एवरी स्टेट बी इट अ डेमोक्रेटिक और डिस्पोटिक, कोई भी स्टेट डेमोक्रेटिक हो या डिस्पोटिक हो, उसके लिए रूल्स का होना और उनके रूल्स को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या दूसरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ एसेंशियल दैट सच रूल्स मस्ट बी एक्सेप्टेड which would decide the role and organization of political institutions in order to save the society from anarchy. So basically students, constitution is very important for maintenance of the rules and regulations and for to decide the role and organization of political institution, which we were discussing in our previous lecture, the concept of political institution and the role of political institutions in political system. So it is very important to having a constitution to save the society from the system of anarchy. So basically in modern states, these rules find expressions in the form of constitution. So basically student, what is constitution? The supreme law of the state. Students, what is constitution? Constitution is basically the supreme law of the state, number one. The second is, it is the foundation and source of the legal authority underlying the existence of the state. What is? ये एक फाउंडेशन है और लीगल अथॉरिटी का सोर्स है जो कि स्टेट के अंडर आती हैं. नंबर थ्री, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. बेसिकली इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क. बच्चों, एक किस गवर्नमेंट को, एक स्टेट की गवर्नमेंट को काम करने के लिए एक ये फ्रेम देती है कि इसने कैसे काम करना है. Our constitution is a basic design which deals with the structure and power of the government. It also includes rights and duties of the citizen. Basically students, constitution जो होता है वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि गवर्नमेंट की डिफरेंट पावर्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, जो डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं, 3 उसके पिलर्स हैं, उनको क्या करे, पावर और स्ट्रक्चर के साथ, उनकी पावर्स द गवर्नमेंट के साथ अपने स्ट्रक्चर के साथ डील करे. इट आल्सो इंक्लूड्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न. बेसिकली स्टूडेंट, इसी इनके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी गवर्नमेंट की जो पावर है उसके साथ साथ ये इंडिविजुअल्स को, आपके और हमारे जैसे लोगों के राइट्स को भी और उनकी ड्यूटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कैरी करता है. समटाइम्स इट इज़ फाउंड इन एन एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ रूल्स, maxims, traditions and practices in accordance with which its government is organized and its powers are exercised. So बच्चों, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है डिफरेंट किस्म के ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को लेते हुए और उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिसके अकॉर्डिंगली उनकी गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है. The term constitution is derived from Latin constituit, which means to establish the constitution in the basic document of a state.
कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म है वो बेसिकली लैटिन कॉन्स्टिट्यूट से ड्राइव हुई है, जिसका मतलब इस्टेब्लिश्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टेट है। इट इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ द स्टेट विच रेगुलेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इट इज़ अ फंडामेंटल रूल ऑफ द स्टेट, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को विद एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, उसके साथ व्हेन वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑथर्स एंड स्कॉलर्स, let's see what Aristotle say about the constitution. Aristotle say constitution is the way in which citizens who are the component part of the states are arranged in relation to one another. So basically student, Aristotle जो कहता है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वे है सिटीजन्स का जो कि पार्ट हैं स्टेट के, अपने रिलेशंस को अरेंज करें एक दूसरे के साथ। यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन्स थ्रू विच दे कैन अरेंज देयर रिलेशन विद ईच अदर। Wolsey say define a constitution as the collection of principles according to which the powers of the government, rights of the government and relations between the two are adjusted. Wolsey define करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज अ कलेक्शन है प्रिंसिपल्स की, विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसका जो रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट्स की पावर्स और राइट्स के दरमियान एक स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट को क्रिएट करता है। जॉर्ज कॉर्नवेल लेविस says defines the constitution as the arrangement and distribution of sovereign power in the community or the form of the government. George Cornwell Levis से defines करता है the arrangement and distribution of sovereign power. Students, basically it is a arrangement and distribution of sovereign power. Sovereign power means sovereignty जो हमारी होती है स्टेट की, उसकी पावर्स को क्या करता है, अरेंज करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कम्युनिटी के अंदर और फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो हमारी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है या कम्युनिस्ट है, जो भी है उसकी जो सॉवरेनिटी होती है, सॉवरेन पावर होती है, उसके दरमियान वो अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूट करता है। What's Austin say? Austin defines constitution in these words as that it fixes the structure of supreme government on the basis of above definitions. We can say that a constitution is, according Austin, he defines constitution as the fundamental law of the land, may be written or unwritten. Students, constitution carry करता है according Austin फंडामेंटल लॉज को ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द लैंड मार्केटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन फॉर्म और इन अनरिटन फॉर्म, यानी कुछ मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होता है और कुछ मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में होता है। डील्स विद द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डील करता है गवर्नमेंट की पावर को और उसकी कंपोजिशन ऑफ मेकिंग को। नंबर 4 पे है व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द एरिस्टोटल। नंबर 5 पे कॉन्स्टिट्यूशन डू डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्न, यानी जो उसकी गवर्निंग पावर्स है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको डील करता है। क्लियर। फर्दर नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन डिफरेंट अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कॉलर्स। अब उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किस सेंस में आती है। आ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। सो स्टूडेंट्स, एक स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए, एक स्टेट की गवर्नमेंट के फंक्शन को रन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ जो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट रीजंस के साथ आती है। टू कर्ब द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय फंडामेंटल लॉ, किसके लिए, गवर्नमेंट की जो हमारे डिफरेंट पावर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट लॉज के तहत। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, टू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ,
to save the state from anarchy. Again and again, different scholars and different authors are defining us that to maintain the rules and regulation and rule and law or law and order in the state and save the state from the situation of anarchy, constitution is very very essential part of the state. To define the operation of sovereign power of the state, sovereign power के करने के लिए to limit present and future generation from arbitrary government, किसके लिए? टू लिमिट करनी, लिमिटाइज करना, लिमिट करना यानी उसको एक लिमिट की फॉर्म में दे देना प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी जो हमारी करंट गवर्नमेंट और के जो हमारे यूथ है और जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसको क्या करना? आर्बिट्री फॉर्म के अंदर से सेव कर देना. When we start its characteristic of good constitution, there are different characteristics of a good constitution, but we will discuss few. Clarity or definiteness. What is definiteness? It is a definite quantity or definite direction, यानी कतायत. Okay. Every clause of the constitution should be written in simple language. It should express its meaning clearly. यानी ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो करेक्टरिस्टिक हैं गुड कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज़ क्लियरली हो, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और उसके जो मतलब हैं उसके मीनिंग हैं बहुत क्लियरली लिखे होने चाहिए. विदाउट लिविंग एनी स्कोप ऑफ फॉर कन्फ्यूजन, यानी उसके अंदर किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन को एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. नंबर सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ब्रेविटी, यानी ब्रीफनेस, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी लेंथी, इट शुड कंटेन ओनली it should contain only important things and unimportant things should be left out. A good कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आपको जैसे मैंने बताया कि इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म, यानी किसी किस्म की कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा नहीं होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट थिंग्स होनी चाहिए और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए. बट द ब्रेविटी शुड नॉट लीड टू गैप इन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग सम इशूज़ अनएक्सप्लेन, यानी ब्रेविटी शुड नॉट लीड टू गैप having institution. In this it is telling you that कि ब्रेविटी जो है यानी उसको लीड नहीं करनी चाहिए किसके साथ? गैप इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी अमेंडमेंट किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन और डेफिनेशन के बगैर को अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए. ब्रेविटी मीन्स यानी स्टूडेंट यानी उसका जो इख्तिसार है उसको लीड नहीं करना चाहिए. कम्प्रीहेंसिवनेस. The third thing is comprehensiveness. Comprehensiveness is the constitution should be applicable to the whole country. If it is a federation, then it must say the structure and power of the center and provisional government. यानी कि हर मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में होना चाहिए जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है? एप्लीकेबल कर सकता है पूरी कंट्री के ऊपर. अगर उसके अंदर एक फेडरेशन का निज़ाम है तो उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द पावर ऑफ द सेंटर और प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी उसका जो निज़ाम है उसका जो एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्किंग है वो इतनी कम्प्रीहेंसिव हो कि उसकी फेडरेशन के स्ट्रक्चर यानी पावर उसके सेंटर और प्रोविजनल गवर्नमेंट के दरमियान वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो. The next characteristic of a constitution is flexibility. The constitution should not too rigid to hinder the process of amendment when needed. It is telling you कि students के अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी किस्म के अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसके अंदर इजीली अमेंडमेंट हो जाए. इट शुड नॉट बी टू रिजिड टू प्रोसेस द अमेंडमेंट व्हेन नीडेड. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फंडामेंटल राइट्स. अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट contain the fundamental rights of the people. In the constitution of countries like India, Russia, China, America and Japan, such declaration have been made. According to this characteristic is कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग और उसकी गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के राइट्स और उनके जितनी भी मोरालिटीज़ हैं उनका ख्याल रखते हुए
उन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए और उनको कॉन्स्टिट्यूशन को हर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन must exist in the form of the constitution. So there are some names of the countries which having the rights and the control over the fundamental rights of the individuals, and these are the Russia, China, America, Japan, which have the declaration, this declaration. Further students, the next characteristic of the constitution is independence of judiciary. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये तमाम अमेंडमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं जिसके अकॉर्डिंगली एक स्टेट अपना वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करती है। तो इन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अनदर क्वालिटी ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशरी शुड फंक्शन फ्रीली एंड एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल विदाउट फेवर ऑफ और फीवर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, independence of the judiciary is another quality of a good constitution. So according to this, जुडिशरी जो है वो फंक्शन करती है फ्रीली और एक्ट करती है एज अ गार्डियन, यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल के। जिस तरह हमने अपनी इससे प्रीवियस करैक्टरिस्टिक के अंदर हमने पढ़ा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के हकूक़ को और उनकी राइट्स को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया जाए, तो उनकी राइट्स की जो सिक्योरिटी है वो किस तरह होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के थ्रू। यानी जुडिशरी इतनी फ्री हो कि उसके वो अकॉर्डिंगली लोगों की जो राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन कर सके और लोगों को उनके राइट्स को प्रॉपर तरीके से पहुंचा सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। In the last characteristic of a constitution, we will discuss about the directive principles of state policy. In a good constitution, mention must be made of the directive principles of the state policy because it helps the establishment of a welfare state. These principles also serve as a bone of the government. So basically students, directive principles of the state policy in a good constitution, mention must be, कि इसमें यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये होना ज़रूरी है कि जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उनके प्रॉपर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ को बनाया जाए जो कि हेल्प करते हैं किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए और उसकी वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दीज प्रिंसिपल्स आल्सो सर्व एज अ बोन ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट। These principles also serve as a bone of the government. So basically students, further I will tell you about the characteristic of the state of the constitution in a form of diagram. You can see students, in a middle circle there is a word of constitution. You can see there are 6 characteristics which are defining the working of a constitution. The first one is, what does the constitution do is, firstly establish the framework of the state. Students, you can see in your above whole, but the first one characteristic is the purpose of the constitution is establish the framework of the state. The second is set out the principles on which the state is founded. The third one is set out how law is to be made. What does is the constitution do? ये क्या करता है, स्टेट का एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है। सेकंड क्या करता है, उन तमाम प्रिंसिपल्स को सेट करता है जिसके अकॉर्डिंगली एक स्टेट एग्जिस्ट करती है। थर्ड, व्हाट डज इट डू, ये सेट करता है कि इसके लॉ कैसे बनाए जाएंगे, लॉज, पॉलिसीज़, डिफरेंट डिप्लोमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएंगी। थर्ड वन पे ये क्या करता है, डिफाइंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सेट आउट द लिमिटेशन ऑफ देयर पावर्स। यानी ये इंस्टीट्यूशंस की क्या करता है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को डिफ़ाइन करता है और उनकी पावर्स की लिमिटेशंस को डिफ़ाइन करता है। सेट आउट द पावर्स ऑफ द स्टेट, यानी ये स्टेट की पावर्स को डिफ़ाइन करता है। नंबर 4, ऑन 5th number, what does the constitution do is set out the powers of the state. It also define the power of the state. On 7th number,
sets out the relationship between the states and individuals of the state. So basically student, it create a relationship between the individuals and the citizens of the state and the governing powers of the state. So after this diagram definition, it is very easy and understandable to understand. So basically student, if the constitution having these characteristics, so it will call a good constitution. Otherwise it will call a rigid constitution, and the constitution should be flexible. It should be easy. There should be a very easy form of the to amend the constitution. If all the characteristics will be fine in the constitution, then it will be called a very good constitution to understand.